Good morning, students. Welcome back to the new chapter, chapter number 3, pair of linear equations in two variables. So, before we go into the main topic, let me give you the brief introduction and background of this topic. The chapter name is pair of linear equations in two variables. So, let us try to understand each term, each word in this chapter name. Variables, and then equations, What do you mean by equation? If you just write equal symbol to an expression, it becomes an equation. Suppose if I write 2x plus 3y, it is an expression. It is an algebraic expression in two variables because two variables are there. And if I equate it to 0, then it becomes the equation. So that is the simple difference between expression and an equation. So according to the chapter name, pair means two, jodi. Linear equations ये तो equation हो गया. What is mean by linear equation? Linear means we have, according to the degree of the polynomial, we have divided the polynomial into different categories. Linear means degree 1, degree 2 is quadratic, degree 3 cubic. Like that, there are many other polynomials. So linear means power 1. So in this chapter, we are going to deal only with linear equations. मतलब उन वेरिएबल्स और इक्वेशंस के साथ हम डील करने जा रहे हैं जिसमें पावर एक हो. ओनली द पावर विल बी 1. लीनियर इक्वेशंस, तो यहाँ पर ये जो इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन बिकॉज द पावर इज 1. लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. हाउ मेनी नंबर ऑफ वेरिएबल्स आर देयर? टू वेरिएबल्स. एंड वैसे कितने इक्वेशंस लेने हैं हमें? पेयर मीन्स 2. सो वी विल बी टेकिंग 3x प्लस 2y. ये दोनों अलग अलग इक्वेशंस और ये दोनों में टू वेरिएबल्स हैं और ये दोनों लीनियर इक्वेशंस भी है और ये दो है. सो नाउ वी कैन से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. सो these are the type of questions we are going to deal with. So what we are going to learn in this chapter? In the first section we will be learning about what is the standard form of the linear equation. जैसे quadratic polynomial के लिए एक standard form था ax square plus bx plus c, वैसे ही यहाँ पर भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है. सो सिंगल लीनियर इक्वेशन के लिए हम सिंगल लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म जो है ax प्लस b इक्वल टू 0 यदि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होता. लेकिन हमारा जो कॉन्सेप्ट है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल. सो द स्टैंडर्ड फॉर्म विल बी is ax plus by plus c is equal to 0. This is the standard form of the linear equation in two variables. Two variables are there and it is linear equation. लेकिन ये तो pair of linear equations ना, so that means there will be one more, ax plus by plus c is equal to 0. अब क्वेश्चन ये रेज होगा कि सर दोनों इक्वेशंस तो सेम ही लग रहे हैं, तो हाउ टू आइडेंटिफाई? सो फॉर डिफरेंशिएटिंग देम वी विल राइट a1 b1 c1 a2 b2 c2. so this is different and this is different. These two are the two standard forms of the linear equations in two variables. so standard form हो गया. उसके बाद how to represent a linear equation. जैसे कि यहाँ पर मैंने जो लिखा है, these are the examples. You can consider this as first linear equation in two variables and this is second linear equation in two variables. इन इक्वेशंस को ग्राफ के ऊपर हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? लाइक यू लर्न इन क्लास 9 ऑल्सो दैट हाउ टू रिप्रेजेंट ए लीनियर इक्वेशन ऑन ए ग्राफ. सो ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या चाहिए रहता है? ग्राफ इज नथिंग बट टू नंबर लाइन्स, एक्स नंबर लाइन एंड वाई नंबर लाइन. ए एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है. पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड दिस साइड नेगेटिव एक्स एक्सिस एंड दिस साइड नेगेटिव वाई एक्सिस. सो दिस हाउ सिंपली वी ड्रा द ग्राफ. इसके अंदर हमें एक्स वैल्यूज यहाँ पर पुट करते हैं, ऑल पॉजिटिव वैल्यूज, और नेगेटिव वैल्यूज को यहाँ पर सेम वाई वैल्यूज पॉजिटिव्स एंड देन नेगेटिव्स यहाँ पे हम मार्क कर देते हैं. सो ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करने के लिए हम पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं. कहीं भी पॉइंट रिप्रेजेंट करते हैं तो उसका एक लोकेशन होता है, उसके एक्स और वाई वैल्यूज होते हैं. हर एक पॉइंट के, हर एक लोकेशन के एक्स और वाई वैल्यूज दोनों होते हैं. सो
एक लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या चाहिए? वी नीड एक्स एंड वाई वैल्यूज. व्हाट डू वी नीड? वी नीड एक्स एंड वाई वैल्यूज. सो हाउ टू गेट एक्स एंड वाई वैल्यूज? सिर्फ एक्स वेरिएबल्स लिखना नहीं, यहाँ पे हमें न्यूमेरिकल वैल्यूज चाहिए. टू मान लो 3, 4 हो, कुछ भी वैल्यूज, न्यूमेरिकल वैल्यूज जब आप अपने पास होंगे वी कैन मार्क द पॉइंट्स. सो जो भी क्वेश्चंस दिए जाते हैं उनको हमें, उनमें से हमें एक्स और वाई वैल्यूज को फाइंड आउट करना है. इसमें से 2x + 3y = 0, इट्स अ लीनियर इक्वेशन. इस इक्वेशन के हमें x, y वैल्यूज चाहिए, पॉसिबल वैल्यूज, और 2, 3 वैल्यूज चाहिए रहेगा. एंड यहाँ पर भी x और y वैल्यूज हम फाइंड करते हैं. फाइंड आउट करके उन x और y वैल्यूज को लेकर वी ड्रा ए ग्राफ. ओके, लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ है हमेशा स्ट्रेट होता है. स्ट्रेट, डायरेक्शन डजंट मैटर, इट कैन बी हॉरिजॉन्टल, स्लैंट और वर्टिकल आल्सो. कर्व नहीं बनता है, इट इज नॉट ए कर्व, इट इज स्ट्रेट. लीनियर इक्वेशन इज ऑलवेज ए स्ट्रेट लाइन, इट्स नॉट ए कर्व. So finally what I want to say, to represent a linear equation on graph sheet, we need xy values. So how to find out those xy values? Suppose यहाँ पे 2x + 3y दिया है, 3y = 6 करके दिया है. दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स. आप ये सोच रहे होंगे कि सर ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है. स्टैंडर्ड फॉर्म के अनुसार 2x + 3y ax + by + c ये यहाँ होना चाहिए. तो आप इसको यहाँ भी लेकर आ सकते हो. 2x + 3y, ये इधर आने के बाद -6 हो जाएगा. तो आपके पास एक और डाउट आएगा कि सर ये तो -x है, प्लस होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड फॉर्म. तो उसको आप प्लस भी कर सकते हो. 2x + 3y + (-6). अब c वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव है. सो इट्स, आप इस तरह भी लिखो, इस तरह भी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता. सो वी आर टेकिंग दिस वन फॉर एग्जांपल, 2x + 3y = 6 इज अ लीनियर इक्वेशन. इस लीनियर इक्वेशंस के एक्स वाई वैल्यूज कैसे हमें फाइंड करना है? वी फाइंड आउट एक्स वाई वैल्यूज बाय यूजिंग ट्रायल मेथड. सो आई टेक एक्स वैल्यू, तो वही आ जाएगा. अब मैं पहले लेता हूँ एक्स का वैल्यू. आई टेक एक्स वैल्यू एज, कुछ ऐसे वैल्यूज लेंगे जो कि हमें ईजी हो जाएगा. यदि मैं एक्स वैल्यू 0 ले लेता हूँ, एक्स वैल्यू 0, तो 2 × 0 0 हो गया. 2 × 0 0 होने के बाद 3y = 6 बचा है. तो y 3y = 6 बचा है. y ये 3 इधर जाएगा, 6/3 हो जाएगा, और इट इज़ 2. 3 2 6, सो आई गेट 2. ओके, अब मैं y वैल्यू को 0 ले लेता हूँ. तो y 0 लिया, 3 × y 0 0 हो गया. अब 2x = 6 बचा. 2x = 6 and x = 6/2, which is 3. Okay, suppose if I take y = 2, y is 2 तो हो ही गया ऑलरेडी. I will take y = 3 - 3. I will take y = 3. 3 3 are 9, तो माइनस वैल्यू आ जाएगा. So for example, I have got 2 values. अब ये तो मैंने ऐसे ही ले लिया, तो I am getting these values. But in other cases, you will get very easy answers. So I have got 2 pairs of xy values. Now I'll take these values. This is 1 2 3 4, 1 2 3 4. अब यहाँ पे x 0 लिया मैंने, दिस इज 0. तो y कितना है? x 0 लेने पर y आया है 2. सो दिस इज 1 पॉइंट. y 0 लिया, देन x = 3 लिया, y कितना है? y 0, मतलब यहाँ से y का डिस्टेंस 0 है, तो ये पॉइंट हो गया. अब इन दोनों पॉइंट को हम जॉइन कर देते हैं. सो दिस इज वन इक्वेशन. ओके, सो इसी तरह ये जो अभी यहाँ पर मैंने जो लाइन ड्रा किया है, दिस इज ग्राफ ऑफ 2x + 3y = 6. ये इसका ग्राफ है. ओके, यहाँ पर आपको स्केल भी लिखना है. सो सिंपली आई एम एक्सप्लेनिंग अबाउट ड्राइंग ग्राफ, हाउ टू ड्रा ए ग्राफ. सो ग्राफ के ऊपर आप इस एक्सप्रेशन को जियोमेट्रिकली जब आप रिप्रेजेंट करते हैं, दिस हाउ इट कम्स. It is not compulsory that it should come always like this. Sometimes it comes in this way, or sometimes it comes like this, or sometimes it comes like this. So it can come in any direction. Okay, so I hope you understood how to find out xy values. It is just trial and error method. तो पहला इक्वेशन के आपने यहाँ फाइंड आउट किया. दूसरा इक्वेशन लोगे, सपोज ये 3x + 2y = 4 दिया है, तो इसके भी आप सेम बॉक्स बनाओगे और यू विल टेक x and y वैल्यूज. x वैल्यू पुट करके y निकालोगे, y वैल्यू पुट करके x निकालोगे.
So after getting these pair of xy values, you will represent them on the graph. अब क्वेश्चन ये राइज होता है that when we represent two linear equations geometrically or graphically on the graph sheet, how do they interact with one another? Two lines go. So how do the lines actually interact? In how many combinations two lines can be interacted or intersected? Suppose here I am drawing a line. This is one line. Okay. So I have one more line. यहाँ एक और line भी है. This is line 1 and this is line 2. Can you tell me in how many combinations these two can interact with one another, or in how many combinations these two can be placed? आप कह सकते हो कि सर जैसे अभी दिखाई दे रहे हैं, दिस इज वन कॉम्बिनेशन, उसको थोड़ा और उल्टा कर दो तो वो एक और कॉम्बिनेशन हो जाएगा. यू मे जस्ट थिंकिंग ऑफ rotating little by little, and you may say that the infinite number of combinations can occur, but that is not true. That is wrong. What happens? See, line means it is having no end, no start. It is continuous. It continues for it continues unlimitedly or infinitely. So this is one line. इस लाइन के पैरेलल में मैं एक लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ. देयर कैन बी अनदर लाइन विच इज पैरेलल. दैट मीन्स दीज टू कैन नेवर मीट वन अनदर. इन दोनों के बीच में कभी भी इंटरसेक्शन नहीं होगा. दे कैन नॉट जॉइन एनीवेयर. दे विल कंटिन्यूसली मूविंग फॉरवर्ड एंड दे विल नेवर मीट. सो दिस इज वन कॉम्बिनेशन. इसको हम कहते हैं पैरेलल. पैरेलल लाइन्स विल नेवर मीट. पैरेलल लाइन्स के बीच में यदि थोड़ा सा भी टिल्ट है, दैट मीन्स ये दोनों पैरेलल नहीं है, तो डेफिनेटली दे विल इंटरसेक्ट वन अनदर. सो ये एक कॉम्बिनेशन हो गया. दूसरा कॉम्बिनेशन, एक लाइन है तो इसी के ऊपर मैं इसके ऊपर लेके आ, ये लाइन 1 को, ये लाइन 1 लाइन 2 को मैं थोड़ा कसका के इसके ऊपर लेकर आया, लाइन 1 के ऊपर. देन व्हाट हैपेंस, लाइन 1 के ऊपर भी लाइन 2 आ गया, तो ये दोनों कंप्लीटली क्या हुए हैं, ओवरलैप हो गए हैं. दे बोथ आर ओवरलैप. दैट मीन्स इसी को हम कहते हैं कोइंसाइड हो गए. दैट मीन्स इफ बोथ लाइन्स आर प्लेस्ड ऑन वन अनदर, दे आर कॉल्ड एज कोइंसिडेंट लाइन्स. पैरेलल लाइन्स दोनों का भी इंटरसेक्ट नहीं होंगे. कोइंसिडेंट लाइन्स वो हमेशा एक दूसरे के ऊपर रहते हैं. दे आर ओवरलैपिंग ऑन वन अनदर. So this is second combination. What is the third combination? Third combination is they intersect with one another. अब इसी के ऊपर जो लाइन आया हुआ था उसमें से सेकंड लाइन को मैंने थोड़ा सा टिल्ट कर दिया. I just tilted it like this. So this is how the combination occurs. This is line 1 and this is line 2. So one combination is parallel, second combination is coincident, third combination is just intersecting. They are intersecting. यहाँ पर भी इंटरसेक्ट हो रहे हैं, लेकिन कितनी बार इंटरसेक्ट हो रहे हैं, कितनी जगहों में, इन्फाइनेटली. जितना लंबा लाइन होगा उतना ही जितना दूर ये होगा लाइन, उतना ही दूर ये इंटरसेक्ट करते रहेंगे. इन्फाइनेटली दे आर इंटरसेक्टिंग. सो इसलिए हम कहते हैं कोइंसिडेंट. बट यहाँ पे इंटरसेक्ट कितनी बार हो रहे हैं, कितनी जगहों में, ओनली एट वन पॉइंट. सो दिस आर द ओनली 3 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस वेयर यू कैन अरेंज टू लाइन्स. 2 लाइन्स को इस तरह कॉम्बिनेशंस में बना सकते हैं. यू मे बी थिंकिंग सर इसको थोड़ा और टिल्ट करेंगे तो क्या ये दूसरा कॉम्बिनेशन नहीं होगा, लेकिन तब भी तो एक ही पॉइंट होगा. इवन इफ यू जस्ट टिल्ट लाइक दिस, इसको वर्टिकली भी आप करोगे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट तो एक ही होगा. सो वन इंटरसेक्टिंग पॉइंट, सो मेनी इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स, नो इंटरसेक्टिंग पॉइंट. सो दिस आर द 3 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस. ओके, सो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट द लीनियर इक्वेशंस. ग्राफ जब बनाओगे, ग्राफ के ऊपर आप इस तरह इसको रिप्रेजेंट करोगे. यू मे बी थिंकिंग सर व्हाट इज द यूज ऑफ लर्निंग दिस क्वेश्चंस. सो इन द चैप्टर में जब हम सम सॉल्व करते हैं, यू विल बी कमिंग अक्रॉस सच क्वेश्चंस वेर यू हैव टू डिसाइड. 2 इक्वेशंस दिए जाएंगे, आपको ये बताना रहेगा कि दीज 2 इक्वेशंस ग्राफिकली हाउ दे आर गोइंग टू intersect. Will they be are they parallel, are they coincident, are they intersect? ये आपको बताना रहेगा. सो ये बताने के लिए देर आर 2 methods. One method is graphical, other method is ratio. Graphical method means ग्राफ बना के हम बताते हैं.
ग्राफ बना के बताते हैं। दूसरा मेथड, ये तो ऑलरेडी आपको समझ में आ गया ग्राफ कैसे बनाना है। ग्राफ बनाने के बाद ग्राफ के ऊपर ये दोनों इंटरसेक्ट हुए हैं तो इंटरसेक्टिंग लाइंस, कोइंसिडेंट हुए हैं तो कोइंसिडेंट लाइंस, एंड इफ दे आर नॉट मीटिंग एनीवेयर टू लाइंस so they are parallel lines. But how to do the ratio? As I said in the standard form, a1x plus b1y plus c1 is equal to 0. c1 हो सकता है राइट साइड में भी हो, फर्क नहीं पड़ता। a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. So these are the two linear equations. These are the two linear equations in two variables. अब रेशियो बेस करके हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं? हाउ कैन वी डिसाइड वेदर दे आर कोइंसिडेंट लाइन्स और पैरेलल लाइन्स और इंटरसेक्टिंग लाइन्स? सो सी हियर, एज आई सेड रेशियो, व्हाट रेशियो? यहाँ पर a1 b1 c1 a2 b2 c2 दे आर कोएफिशिएंट्स and constants. c1 c2 are constants, a1 b1 are a1 b1 and a2 b2 are coefficients. So we have to take the ratio a1 by a2, b1 by b2, c1 by c2. इन तीनों का रेशियो हम लेते हैं, इनके टू इक्वेशंस के कोएफिशिएंट्स का रेशियो और कांस्टेंट्स का रेशियो लेते हैं। यदि तीनों रेशियोस एक दूसरों से इक्वल हैं, तीनों रेशियोस का वैल्यूज इक्वल हैं, तब हम इसको कहते हैं, वी कॉल इट एज कोइंसिडेंट लाइन्स। दे आर कॉल्ड एज कोइंसिडेंट लाइन्स। इफ three ratios are equal to one another, they are called as coincident lines. What about the remaining two? अब देखते हैं coincident होने के बाद parallel, ये दोनों coincident हो गए हैं। अब parallel के लिए condition next, a1 by a2 is equal to b1 by b2, मतलब coefficients का रेशियो इक्वल हो गया लेकिन कांस्टेंट्स के रेशियो से इक्वल नहीं है, तो ये होता है पैरेलल लाइन। इन सच केसेस टू इक्वेशंस आर ऑफ पैरेलल, दे आर पैरेलल टू वन अनदर। अब तीसरा कंडीशन होगा a1 by a2 इटसेल्फ इज नॉट इक्वल टू b1 by b2, मतलब कोएफिशिएंट्स का रेशियो ही इक्वल नहीं है, तो आप तीसरे से आपको कंपेयर करने का ज़रूरत नहीं है। जब रेशियोज फाइंड करते हैं, रेशियोज के बीच में रिलेशन, यदि ये दोनों इक्वल नहीं आए हैं तो अब इन दोनों को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, हो गया है intersecting lines. They are intersecting lines. Okay, so जब भी आपको टू इक्वेशंस देकर इस तरह फाइंड आउट करने के लिए कहा जाता है, फर्स्ट विल फाइंड आउट a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2। जब ये दोनों इक्वल नहीं हुआ है तो आपको पता चल जाता है कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन्स है। इंटरसेक्टिंग लाइन्स हो गया है तो इन दोनों से कोई काम है नहीं, क्योंकि दैट इज ऑब्वियसली इफ इट इज इंटरसेक्टिंग दे आर नॉट कोइंसिडेंट एंड दे आर नॉट पैरेलल। यदि ये दोनों इक्वल हो गए हैं लेकिन तीसरे रेशियो से इक्वल नहीं है, कांस्टेंट के रेशियो से इक्वल नहीं है, तो ये होगा पैरेलल। लेकिन अब तीसरे केस में ये a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 हो गया और वो c1 by c2 के साथ भी इक्वल हो गया, तो वो हो गया कांस्टेंट लाइन। सो दिस इज हाउ वी डिसाइड बाय यूजिंग द रेशियो वेदर दे आर कोइंसिडेंट लाइन्स और पैरेलल लाइन्स और इंटरसेक्टिंग लाइन्स। आफ्टर दिस let me tell you one more thing, that I have taken two equations और दोनों equations के लिए मैंने ग्राफ बना दिया। एक, so as I said, ग्राफ two equations के लिए जब ग्राफ बनाएंगे, three combinations are there. One is parallel, another one is coincident, third one is intersecting. So suppose equations जो ग्राफ जो है, एक इस तरह बना, दूसरा इस तरह बना, this is equation 1 का और ये इक्वेशन 2 का, ये दोनों इक्वेशंस के दो ग्राफ्स बने हैं। ओके, नाउ टेल मी एट हाउ मेनी पॉइंट्स दीज टू आर इंटरसेक्टिंग? एट वन पॉइंट, दे आर इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट। सो द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ द बोथ लाइन्स इज नथिंग बट अ सॉल्यूशन। द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ द बोथ, तो ये यहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो यहाँ इस पॉइंट के लिए एक लोकेशन होगा, दिस इज द लोकेशन। तो इस पॉइंट का एक्स वैल्यू भी होता है और वाई वैल्यू भी होता है। सो इस पॉइंट का जो एक्स वाई वैल्यू होता है उसको हम कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ बोथ लीनियर इक्वेशंस, बोथ लीनियर
इक्वेशंस. सो दोनों इक्वेशंस के जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है उसको हम कहते हैं सॉल्यूशन. सो नाउ टेल मी हाउ मेनी सॉल्यूशंस टू इंटरसेक्टिंग लाइंस विल हैव. कितने सॉल्यूशंस होंगे, कितने पॉइंट्स होंगे? ओनली वन पॉइंट. सो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स विल हैव सिंगल सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन हम कह सकते हैं. यूनिक, दिस इज यूनिक, ऐसा कहीं नहीं होगा. दिस इज यूनिक सॉल्यूशन. और नाउ टेल मी, सपोज इस ग्राफ के अंदर दोनों लाइंस इस तरह आ गए हैं, दे आर पैरेलल, दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग एनीवेयर. नाउ हाउ मेनी सॉल्यूशंस इट विल हैव? आर दे इंटरसेक्टिंग एनीवेयर? दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग एनीवेयर, so they are not having any solution. So it will not have any intersecting value, they will not have any xy value, so no solution. इस केस में नो सोल्यूशन. जब आप इस तरह फाइंड करते हैं ना, ये पैरेलल लाइन्स है या कोइंसिडेंट लाइन्स हैं और दे आर intersecting lines, when you decide there itself you can also decide whether it will have a solution or not. If they are parallel, it will have no solution. If they are intersecting lines, it will have unique solution. That means it will have only one xy value. उसको हम ग्राफ के थ्रू डिसाइड कर सकते हैं. एंड तीसरा कॉम्बिनेशन, ये दोनों का लाइन जो है सेम ही बन रहा है. हो सकता है ऐसा भी हो या ऐसा भी हो. दोनों इक्वेशंस का लाइन सेम आ गया है. नाउ हाउ मेनी सॉल्यूशंस इट विल हैव? It will have infinitely many solutions. It will have many solutions क्योंकि एक काफ़ी जगहों में इंटरसेक्ट हो रहा है एक दूसरे से, हर जगह पे ये दोनों इंटरसेक्टेड ही है. तो इट विल हैव सो मेनी एक्स वाई वैल्यूज. यहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है तो यहाँ एक्स वाई वैल्यू होता है, यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है तो यहाँ पर भी एक वैल्यू है. सो लाइक दिस इट विल हैव सो मेनी solutions, so infinitely many solutions. This is how we decide whether two equations will have infinitely many solution or no solution or single solution. So this is the first exercise of deciding about the characteristics of the linear equations, whether they will have solution or not, and how many solutions they will have, whether they are coincident, parallel or intersect. So this is about today's class, children. Watch it thoroughly. If you get confusions, pause it, rewind, go back and again watch it. Definitely you will understand. After watching this, kindly solve the exercise 1. एक्सरसाइज 1 में से जो भी क्वेश्चन है ग्राफिकली बनाने के क्वेश्चन, यदि आपके पास ग्राफ्स अवेलेबल नहीं है इस वक्त, यू कैन रफली ड्रा द ग्राफ एंड यू कैन डू इट. थैंक यू. गुड डे चिल्ड्रन.